Nernst distribution law is helpful in the process of extraction. What is the process of extraction? I am going to quote a simple example. A chemical, suppose it is being extracted from somewhere, like caffeine that is extracted from the tea leaves. So from the tea leaves, caffeine is extracted. Caffeine will pass to the aqueous phase. But how to extract it, how to separate it from there, that can be done with the help of the Nernst distribution law. That caffeine can be extracted with another solvent where caffeine is more soluble than its solubility in the aqueous phase. How extraction is done? Simply, suppose it is the X gram of caffeine that is present in the 1 liter of aqueous phase, and I am going to extract it with 1 liter of the ether, and whole of the ether which is used for the extraction, that I am going to use in a single load, in a single step, that whole of the ether will be utilized. Then I will take the help of the partition coefficient or distribution law in order to extract the caffeine from the aqueous phase. But whatever solvent I am going to use, the solubility of the solute, it should be more in that solvent than in the aqueous phase. So caffeine, it is more soluble in the ether than it is in the water, and that is obvious from the partition coefficient here, which is concentration in the ether divided by concentration in the water, that is equal to 2. It means caffeine is twice more soluble in the ether than in the water. So it again another application of the Nernst distribution law. It also gives a comparative ratio of the solubility of a particular component into immiscible liquid, as it is obvious from here that the caffeine, which is the only example, it is more soluble or twice more soluble in the ether than in the water. What you do practically, you take 1 liter of the aqueous solution that contains the caffeine, you take 1 liter of the ether separately, then you mix that ether with the aqueous solution and you shake it, and then the two materials, they are separated with the help of the separating funnel. What is the separating funnel? See here, that is the separating funnel. So the one solution that contains the caffeine in the aqueous phase, that is added here, another solvent with which you are extracting, that is added here, and then it is shaked so that whatever is the solute that distributes itself between the two components or two solvents. Then the two liquids are separated. Here there is a outlet, so when it is opened, one layer can be separated from the another layer. How separation is done? See here in the video, I am separating the previously discussed iodine and CCl4 liquids. So when you will add this liquid here, so the two layers will be as it is in the separating funnel. So that's the addition of the one of the solvent, another solvent, and the solute. Now separation can be done with the help of the separating funnel. So one layer is down, you have to open the valve from the bottom. जो नीचे बल्ब दे रखा है, लगा हुआ है ब्लू कलर का, वो आपने ओपन करना है. तो धीरे धीरे सोल्यूशन जो है वो नीचे की तरफ जो वो रन करेगा, और जैसे ही सोल्यूशन नीचे की तरफ रन करेगा तो एक लेयर का लेवल जैसे ही नीचे पहुंचता है, वैसे ही आपने नोब वहां से क्या कर देनी है, क्लोज कर देनी है. तो जैसे ही आप नोब को क्लोज करोगे तो नोब के क्लोज करने से एक लिक्विड जो है वो सेपरेटिंग फनल में बच जाएगा और दूसरा लिक्विड जो है वो नीचे बीकर में सेपरेट होके आ जाएगा.
तो इस तरीके से जो वो सेपरेशन देखिए, एक लिक्विड जो है वो दूसरे लिक्विड से सेपरेट हो रहा है। तो जहां ये धीरे धीरे वॉल्यूम नीचे आना है, लेवल नीचे आना है, तो जैसे जैसे लेवल नीचे आता जाएगा वैसे वैसे आपने फिर इसको क्या कर देना है, यहां से नोब को क्लोज कर देना है। तो एक लिक्विड को दूसरे लिक्विड से जो है वो सेपरेट किया जा सकता है। तो इस तरीके से जो है वो आप ईथर वाला जो मैं एग्जांपल कोड कर रहा हूं, देखो यहां पर ये यहां से क्लोज हो गया, तो यहां से आपने इसको क्लोज कर देना है। सो दैट इज द वे ऑफ सेपरेटिंग द two layers, one layer from the another layer. So again coming to this example, that suppose this much gram that is present in the aqueous phase, it is extracted with the 1 liter of the ether, and whole of the ether that is being utilized in the single lot. Now let partition coefficient that it is twice more soluble in the ether than in the water, and let when you shake it and when you separate with the help of the separating funnel, then how much it is small x gram of solute that is extracted with the 1 liter of the ether in the one lot. तो जितना solute जो है वो इसमें पास होना था ईथर में, वो कितना पास हुआ, स्मॉल x, और यहां पर मैंने कैपिटल X ले रखा है। तो नर्नेस लॉ कैसे आप अप्लाई करोगे, दिस स्मॉल x that has been passed to the 1 liter of the ether, so it is C ether. Upper it is C ether, it is the concentration in the ether. Total x ग्राम प्रेजेंट था किसमें, एक्वस फेज में, उसमें से स्मॉल x चला गया कहां पर, ईथर में, तो x माइनस x बच गया यहां पर किसमें, वाटर में। सो कैपिटल X माइनस स्मॉल x दैट इज लेफ्ट इन द 1 liter of the water. So when you will solve this equation, you will get at last x is equal to 0.67x. It means 67% of the x that has been extracted or that passed to the ether. तो अगर आपने सारा का सारा ईथर एक ही बारी में यूज कर लिया, सिंगल टाइम में यूज कर लिया, तो 67% एक्सट्रैक्शन होगी उस ईथर से। 67% जो वो किसमें पास हो जाएगा, ईथर में पास हो जाएगा, और 33% कहां रह जाएगा, वाटर में रह जाएगा। सी हियर इट इज अगेन इंडिकेटरी ऑफ द दिस सी ईथर ट्वाइस, तो 33 किसमें बचा, वाटर में, उसका डबल कितना होता है 66, तो 66 या 67 जो भी आ रहा है, 67 कहां पास हो गया, ईथर में, तो 67 डिवाइडेड बाय 33 दैट इज इक्वल टू 2। तो ऑब्वियसली इट इज सेम रिफ्लेक्शन, so 67% of the solute it will pass to the ether, and 33% it will remain in the aqueous phase. Now I do another experiment here. I do not use whole of the ether in one lot, but I use in 500 ml lot each, so that 2 time extraction is done. So in the first time, suppose it is x1 amount that passes into the 500 ml of the ether. So it is x1 divided by 500, that is C ether. X total that was present in the water, x इतना पास हो गया है ईथर में, तो इसको यहां से लेस कर देंगे, that is left in the aqueous phase. So x minus x1 that is present in the 1 liter. वाटर तो चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन ईथर हमने पहले तो सिंगल लॉट में यूज कर लिया था पूरा का पूरा 1000। अब जो वो डबल लॉट में कि 2 लॉट्स में यूज कर रहे हैं, एक बार 500 ml, दूसरी बार 500 ml. So divided by 500 here, that is equal to 2. When you will solve this equation, you will find x1 is equal to 0.50x. इसका मतलब 50% एक्सट्रैक्शन हो जाएगी उससे, किससे, अगर आप 500 ml का लॉट यूज करते हो। जब आप सेकंड लॉट में उसको यूज करते हो, एक बार सेपरेटिंग फनल से सेपरेशन हो गई, द्वारा उसमें आपने जो है वो क्या ऐड करना है, ईथर ऐड करना है। When you will add ether second time, then suppose it is x2 amount that passes into the ether. जो एक्वस फेज था उसमें से 50% निकल गया है, तो कितना बचा होगा, 50% बचा होगा, तो x डिवाइडेड बाई 2 दैट x का 50% उसमें बच गया है। सो x by 2 minus x2 that is left into the water now. So when you will solve this equation, you will get x2 that is equal to 0.25x.
तो अगर मैंने 2 बार में वो ईथर यूज किया 500 ml और 500 ml के लॉट में, तो एक बार 50% और दूसरी बार 25%, टोटल एक्सट्रैक्शन हो गई मेरे पास 75%। तो अगर सिंगल लॉट में यूज करता हूं तो 67% एक्सट्रैक्शन होती है, लेकिन अगर 2 लॉट्स में यूज करता हूं तो 75% यूज होती है। अगर मैं इसको 3 लॉट में यूज करूं तो ये 75 से इंक्रीज होता जाएगा। अगर मैं इसके 5 या 6 लॉट में यूज कर लूं तो इसकी परसेंटेज और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। इसका मतलब जितना कम स्लॉट में आप उसको यूज करते हैं, 1 लीटर है तो 100 ml के हिसाब से 10 बार यूज कर लीजिए, तो आपके पास 95, 97, 98% एक्सट्रैक्शन जो है वो उसके साथ पॉसिबल है। इसका मतलब जो है, जो आप सेपरेशन के लिए लिक्विड यूज कर रहे हो या एक्सट्रैक्शन के लिए लिक्विड यूज कर रहे हो, वो सारा का सारा एक बार में यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। इट शुडंट बी सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन, इट शुड बी मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन। एक एग्जाम्पल के तौर पर हाउस होल्ड एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको। एज वी नो दैट वी वॉश क्लोथ्स इन द हाउस, तो कपड़ों में जो है वो क्या रह जाता है, साबुन रह जाता है। अब आपके पास मान लो एक ही बाल्टी है, उसको साबुन को वहां से हटाने के लिए, साबुन को धोने के लिए। तो अगर सारे के सारे कपड़े आप सिंगल स्लॉट में उसमें डाल दोगे तो उससे साबुन की एक्सट्रैक्शन जो वो कम होगी। लेकिन अगर आप उसको थोड़े थोड़े स्लॉट करके यूज करोगे तो कपड़ों से मैक्सिमम साबुन जो है वो गायब हो जाएगा। सो सिंगल स्टेप एक्सट्रैक्शन की बजाय क्या होना चाहिए, इट शुड बी ए मल्टी स्टेप एक्सट्रैक्शन। देयर इज आल्सो ए डेरिवेशन ऑफ जनरल फार्मूला। So general formula derived in a very different way than the upper discussion. Suppose it is weight W gram of solute that is present in the V ml of aqueous solution. जैसे ऊपर बात की थी कि कैफीन प्रेजेंट है, W ग्राम कैफीन प्रेजेंट है, V ml 1000, वहां मैंने सीधे डिजिट ले रखे थे। यहां पर जो फार्मूला डिराइव कर रहे हैं तो इसलिए W ग्राम प्रेजेंट इन द V ml of aqueous solution. Let another solvent इन स्मॉल वी लोड्स। अब 1 लीटर ऊपर था, उसको तो 500 ml में यूज किया है, 1000 टोटल यूज कर लिया। 100 भी यूज कर सकते हैं, 50 भी यूज कर सकते हैं। जितना छोटा लॉट है, मैंने मान लिया वो छोटा लॉट कितना है, VML का, तो स्मॉल वी लॉट्स हैज बीन यूटिलाइज फॉर द एक्सट्रैक्शन। लेट K विद द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ सोल्यूट इन एक्वस सॉल्यूशन एंड सॉल्वेंट। यहां थोड़ा सा डिफरेंस है। ऊपर मैंने जिसमें ज्यादा सॉल्युबिलिटी थी वो मैंने ऊपर ले रखा था, C ईथर, सॉल्युबिलिटी इन ईथर इज ट्वाइस। पर यहां पर मैंने क्या किया हुआ है, रिवर्स ले रखा है कि यहां जो मैंने टर्म ऊपर लिखी थी, इसमें लिखा हुआ यहां पर इट इज लेट पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ सोल्यूट इज 2 इन ईथर एंड वाटर। जब ईथर पहले आएगा तो C ईथर ऊपर लिखा जाएगा और C वाटर नीचे लिखा जाएगा। लेकिन यहां वाटर एंड ईथर लिखा होता तो फार्मूला उल्टा लिखा जाना था, C वाटर डिवाइडेड बाय C ईथर। इन द सेम मैनर हियर व्हाट आई एम स्टेटिंग दैट लेट K विद द पार्टीशन कोएफिशिएंट ऑफ सोल्यूट इन एक्वस। सो वाटर पहले आ रहा है और सॉल्वेंट बाद में आ रहा है, तो इसीलिए मैंने वाटर वाली टर्म पहले लिखनी है और जो सॉल्वेंट लिया एक्सट्रैक्शन के लिए वो वाला बाद में लिखना है। ऊपर था कि कितना उसमें से एक्सट्रैक्ट कर लिया, यहां पर हम चलेंगे कि कितना वाटर में बच गया। ऊपर क्या डिस्कस किया, हाउ मच इज बीइंग एक्सट्रैक्टेड। यहां मैंने ये नहीं डिस्कस करना है, यहां मैंने ये डिस्कस करना है कि कितना यहां पर बच गया, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में। एक्वस सॉल्यूशन में मिनिमम बचना चाहिए, तो मैंने यहां एक्वस सॉल्यूशन में कितना बच रहा है वो निकालना है और बाद में उसको मिनिमम कर देना है बाय द एप्लीकेशन की कैसे वो मिनिमम हो सकता है। सो आफ्टर फर्स्ट एक्सट्रैक्शन लेट W1 इज लेफ्ट इन द एक्वस फेज। आपने एक एक्सट्रैक्शन कर ली VML से और बचा कितना एक्वस में, W1। टोटल कितना था, W। अगर W को W1 से लेस करते हो दैट पासिस इनटू द VML। सो हियर W1 divided by capital V is the aqueous solution, or W minus W1 divided by V, small v, it is the solvent that is utilized for the extraction. When you will solve this equation,
you will get the value of W1, how much that is left in the water. It is equal to kV divided by small b, that is the load, कितने लॉट ml का लॉट आप यूज कर रहे हो एक्सट्रैक्शन के लिए, प्लस kV मल्टीप्लाई बाय W, that is the how much that was present in the aqueous phase. In this way, let in the second extraction W2 is left in the solution. So W2 is left in the solution means W2 is left in the water. So W2 divided by V, it will remain constant. पहले बचा था उसमें W1 वाटर में, तो W1 डिवाइडेड बाय V किया था, अब बचा W2, लेकिन W1 निकल चुका है, अब W2 उसमें से विड्रॉ हुआ, तो W1 minus W2 that passes through to the solvent. So it is W1 minus W2 that passes to the solvent. So this is the again distribution law. Again from here you calculate the W2, then W2 becomes equal to KVV plus KV multiplied by W1, and from here you substitute the value of W1, then it equals to kV divided by V plus kV का square multiplied by W. Now for nth extraction, it is Wn, it should be equal to, ये second extraction थी, 2 और 2 यहाँ पर आया है, तो nth extraction के लिए n ही आएगा, यहाँ n आएगा और ये है Wn जो कितना होना चाहिए, it should be minimum, Wn minimum होना चाहिए, Wn should be minimum, जितना उसमें कम बचेगा वाटर में उतना जो है वो बेहतर एक्सट्रैक्शन होगी. तो ये मिनिमम कैसे हो सकता है, इट कैन बी मिनिमम इफ दिस टर्म इज मिनिमम. हाउ इट कैन बी मिनिमम, ये टर्म पहले ही 1 से लेस है, सपोज kV इज 1 प्लस दिस इज हाउ मच लोड दैट इज बीइंग यूटिलाइज, सो 1 डिवाइडेड बाय मोर टर्म, सो इट इज ए फ्रैक्शन. फ्रैक्शन कब मिनिमम होगी, जब n की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम. n क्या है, हाउ मच टाइम यू आर एक्सट्रैक्टिंग. तो इसका मतलब जितने ज्यादा स्टेप आप एक्सट्रैक्शन के लिए यूज करते हो उतने बेहतर तरीके से आप जो वो एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को कर सकते हो. थैंक यू वेरी मच.